अश्वत्थामा पहला सीरीज ने ऑलमोस्ट 1.5 लाख स्ट्रीम्स कर लिए। अच्छा, वो भी यूनिक था क्योंकि IGTV का सबसे पहला वेब सीरीज मैंने ही निकाला। दैट्स व्हाई एशियन न्यूज ने उस चीज को नोटिस किया था। Welcome to Ishka Studios. I am your host Sonali, and today we are sitting with an extremely talented actor, director, producer, amongst a lot of other things that he does. Today we are sitting with the main star of an upcoming web series, one of its kind web series, Sultanat. We were sitting with Rehan Sharma. Thank you, Sonali. That was a very sweet intro. Thank you so much, Rehan. Great to have you. So, definite बात है कि आप you are like हम लोग कल भी बात करते, you're trying to make a statement. Yeah. कि you were saying, I remember कि Indian crowd जो होती है या Indian cinema जो होता है, it is not just painted in one color on with one brush. इसमें कुछ और भी हो सकता है, right? And somebody can think beyond what has been done. And I think वही आपका vision था. Exactly. जो obviously जितने भी लोग थे उन्हें भी समझ नहीं आया till they saw themselves as part of the entire project. The fun part was कि since the start of the project 2 years before, from that start till the very end, there was nobody who had this belief कि ये बन पाएगा, ठीक है? Only I was the person who knew कि हाँ ये सीरीज ऐसा बनेगा, ठीक है? I won't blame them for that, but at the same time nobody can understand my vision. Only I can understand my vision because I have created that thing and I have created something which is unseen. So if that thing is unseen, then I have to make sure that people understand it once it is accumulated in a place. Right. So that is why people were not able to believe in the कि ये कैसा बनेगा. But they had a belief कि हाँ अगर ये आदमी बोल रहा है कि ये चीज़ हो जाएगा, तो they believed me. I feel they did not believe the series, but they believed me, and if they have believed me, I have justified them. No, absolutely, because every person we have spoken to, has said such great words about you and your dedication. And since we are talking, there was one scene where आपको सच में लग गई थी, one action sequence where during that entire sequence your head started bleeding, I think, and then you said कि scene cut मत करो, चालू रखो. Actually हुआ यूँ था कि इस शूट के एक दिन पहले आई वॉज रिटर्निंग, मतलब हमारा एवरीडे शूट होता था, तो उस दिन आई वॉज जस्ट रिटर्निंग होम द डे बिफोर द इंसिडेंट. तो मैं बहुत थका हुआ था, तो आई टुक माई स्कूटी इंस्टेड ऑफ कार. तो आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम 2-wheeler एंड देन आई मेट विद द एक्सीडेंट. तो मेरा ये जो पूरा पोर्शन था ऑफ दैट लेग पोर्शन वॉज डैमेज्ड, बट मैंने बताया नहीं किसी को कि मेरे को चोट लगी हुई है. तो but then next day I just came back to the shoot. तो उसमें सीन था, I had to sit down on a place where they were full rough surface. तो I was not able to sit. तो मैं बहुत मतलब अपने आप को ऐसे सेटल करके somehow I sat. उसके बाद when that action sequence was happening, तो उसमें Dev improvised and he was like कि यार जो मैंने action sequence लिखा था, my action director was Kunal Tyagi. He was the same person who shot the whole series. तो उसने जो डिज़ाइन किया था उसमें था कि देव विल बीट मी एंड उसके बाद वो मेरे को उठा के फेंक देगा. बट देव ने कहा नहीं, आई विल जस्ट पिक हिम अप ऑन माई शोल्डर, आई विल टेक हिम अप, उसके बाद मैं इसको फेंकूंगा. मैंने बोला चोट लगी हुई है, बट मैंने किसी को बताया नहीं. गए ऊपर, वहाँ पे पैर फिसल गया, और पैर फिसला तो मेरा जो सर था वो वहाँ पे एक कब्र टाइप की जगह थी, उस पर जाके लग गया. एंड देन उसके बाद देव वॉज डूइंग ए सीन, और उसके बाद उसको रियलाइज ही नहीं हुआ कि कैसे सर में लग गई. एंड देन उसके बाद जब खून बह रहा था, तो मेरे को तो बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हुआ कि खून बहने लगा है, जब तक लोगों ने नहीं बोला कि खून बह रहा है. उसके बाद मेरे को हल्के हल्के चक्कर आने शुरू हुए. तो जब मेरे को चक्कर आ रहे थे, तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि मैंने बहुत मेहनत की है अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए. अब अगर आज का टाइम वेस्ट हो गया, तो हमारा जो कैमरा का जो हमारा कैमरा हमने रेंट पे लिया था इक्विपमेंट, उसका रेंट भी जाएगा, और फालतू में एक छोटी सी चोट के लिए शूट कैंसिल हो जाएगा. तो मैंने ऐसे अपने आप को समझाया. मैंने कहा कुणाल को, ये लोग चिल्ला रहे थे कि लग गई, ऐसे हो गया. मैंने बोला नहीं, मैंने कहा चुप हो जाओ सब, वापस से सीन में आओ, डू इट, एंड कैमरा बंद नहीं होगा, इसी जो भी ब्लड है इसमें ही पूरा शूट होना चाहिए, रियल लगेगा. राइट. तो क्योंकि रियल है. हाँ, क्योंकि रियल है. तो मैंने कहा रियल लगेगा ऑडियंस को, और जब इतनी मेहनत की है तो ठीक है. उसके बाद जब शूट एंड हुआ, तो उस टाइम तक मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी.
क्योंकि इधर से खून बह रहा था, इधर से पैर में लगी हुई थी. बट एट द एंड ऑफ द डे जब मैंने वो एक्शन सीक्वेंस घर पे जाके देखा था, आई वाज वेरी हैप्पी कि यार चलो कुछ अच्छा हुआ, एटलीस्ट इट हैपेंड गुड. राइट. बट उसके बाद मैंने ध्यान रखा कि कास्ट में किसी को भी चोट ना लगे. नहीं, डेफिनेटली आई नो, क्योंकि काफ़ी सारे एक्शन सीक्वेंसेस है वहाँ पे, एंड यू नो ऑब्वियसली कास्ट इंटरव्यू में पता चलेगा उसके बारे में मोर डिटेल. बट आई वांट टू नो अबाउट योर कैमरा पर्सन, योर डीओपी. आप बोल रहे थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, एंड यू नो अ लॉट ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ हिज अमेजिंग वर्क. आई वुड से कि मैंने उसको एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर हायर किया था. मैं उसको समझाता था कि मुझे ये सीन चाहिए. आई यूज्ड टू डू दैट सीन. वो देख लेता था, उसको मैं बता देता था मुझे इसमें हीरोइज्म चाहिए, मुझे इसमें कैरेक्टर दिखाना है, या मुझे इस सीन में थोड़ा एनवायरनमेंट फील करवाना है. तो उस बंदे को पता रहता था इसका विजन ये है, मेरे को बस अपने हिसाब से एंगल देना है, और वो उस चीज़ को शूट करता था. और जो उसका बेस्ट वर्क आप देखोगे सीरीज में, वो मेरे को लगता है जो फर्स्ट एपिसोड है उसमें, व्हेन अभिषेक सॉरी मतलब पता नहीं देखो लोगों को कि अभिषेक कौन है. तो माय थर्ड ब्रदर, उसका जो कैरेक्टर है, ही इज रनिंग मतलब फ्रॉम अ मार्केट टू अ फॉरेस्ट. उसके बीच का जो वो सीक्वेंस है, इन दैट यू विल सी हिज लेवल ऑफ सिनेमेटोग्राफी व्हिच ही हैज डन. हर एक माइन्यूट डिटेल, उसके भागने से लेके, उसकी आंखों से लेके, उसकी सांसों से लेके, उसके पैर के मूवमेंट सीढ़ी पे से, जब वो आएगा भागते हुए वो सीढ़ी पे जाएगा तो विल सी हाउ हिज लेग मूवमेंट इज हैपनिंग. तो ही हैज डन वेरी एब्सोल्यूट वर्क. उसके बाद व्हेन द एक्शन सीक्वेंस वाज हैपनिंग, इट इज़ वेरी इजी टू शूट ऑन अ प्लेन सर्फेस. आप नीचे खड़े हो, यू जस्ट नीड टू टेक मतलब मैंने एक आपने आपको घूसा मारा तो इधर से गया, और फिर एक इस एंगल से कैमरा लगा के वी कैन कट एंड एडिट इट. ठीक है. बट द टफ पार्ट वाज ही क्लाइम्ड, जो हमने सेट बनाया था देव के किंगडम का, ही क्लाइम्ड मतलब वो 50 फीट ऊपर होगा, वहाँ जाने का एक पतला सा सीढ़ी था, वो ऊपर चढ़ के गया. ही सैट देयर एंड ही शॉट द एंटायर फाइट सीक्वेंस फ्रॉम 50 फीट अबव. ओके. कैमरा में. ओके. तो दैट वाज हिज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क व्हिच ही हैज पुट. तो रेहान थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, घर वालों का क्या रिएक्शन आ रहा है? अभी आप इस लाइन में जा रहे हैं, अभी वेब सीरीज बना रहे हैं इतने यू नो बड़े प्लेटफॉर्म पे, व्हाट इज द रिएक्शन? सच बोलूं या झूठ बोलूं? वो तो आप देख लीजिए, आपको जैसे बोलना है. तो अगर मैं सच बोलूं तो ऑडियंस में जितनी भी लोग हैं वो जानते हैं कि फैमिली नेवर सपोर्ट्स अंटिल यू प्रूव देम. तो यू नीड टू प्रूव देम कि इफ़ यू आर डूइंग दिस यू आर गुड एट इट. क्योंकि अल्टीमेटली दे डोंट वांट कि तुम इसमें ना जाओ, दे जस्ट वांट कि अगर तुम इस चीज़ में जा रहे हो तो तुम फेल ना हो. तो मेरी फैमिली भी यही चाहती थी कि मैं कभी फेल ना हो. मेरा सपना था हमेशा से कि मैं एक्टर बनूं. डायरेक्शन मेरा सपना नहीं था, पर डायरेक्शन मैंने कर दिया और वो अच्छा हो गया. मेरा सपना हमेशा से एक्टिंग था. और मैंने जब पापा मम्मी को बताया था 10th में कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो मेरा पढ़ाई में बहुत मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है बोले तो. बट घर वालों के प्रेशर के चक्कर में मेरे को काफ़ी मैनिपुलेट किया गया कि नहीं एक्टिंग अच्छा नहीं है, ऐसा वैसा नहीं करना है. तो मैंने फिर सोचा कि हाँ ठीक है. फिर उसके बाद एक घुटन सी हो रही थी क्योंकि मैं अपनी पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहा था. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ से भागूंगा, और इसलिए मैं वहाँ से आ गया कर्नाटका अपनी स्टडीज़ करने के लिए. यहाँ आया तो मुझे मिली मेरी थिएटर टीम, बट उन लोगों ने मुझे चांस ही नहीं दिया कि मैं कर पाऊँ. एंड देन देयर वाज अ इंसिडेंट, एक पर्सनल इंसिडेंट हुआ जिसके बाद आई वाज टोल्ड कि आई एम नॉट फिट फॉर थिएटर एंड मैं एक अच्छा एक्टर नहीं हूँ एंड आई कैन नॉट डू एक्टिंग. वो बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी एंड दे टुक मी आउट फ्रॉम द थिएटर. और उसके बाद मैंने सोचा कि यार मैं 6 महीने काफ़ी डिप्रेस था. तो इस टाइम पीरियड में हमेशा मेरे घर वाले भी कॉलेज में बोलते रहते थे कि ये थिएटर के चक्कर में पड़ गया, ही इज़ नॉट, पढ़ाई नहीं कर रहा है, एवरीथिंग. तो सब ब्लेम करते थे मेरे पैशन को एंड आई वाज वेरी हर्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मेरे पैशन को ये लोग कर रहे हैं. तो आई वांटेड टू प्रूव. एंड हमेशा लोग मुझे बोलते थे कि तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारे पैशन को गाली पड़ती है. तो आई वाज लाइक कि हाँ, आई हैव टू प्रूव देम कि नहीं, आई कैन डू दैट. तो फिर मैंने जब कोविड का लॉकडाउन हुआ तो उसमें मेरे दिमाग में, मैंने उससे पहले ही एक अश्वत्थामा की एक स्क्रिप्ट लिखी थी और वो मैंने सुनाया था रेड पैंथर प्रोडक्शन, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं रमेश कपूर, उनको. तो उनको मैंने बोला कि ये जो हमारी सीरीज़ है ये बनानी है मेरे को, बट लॉकडाउन हो गया.
तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उसको घर में ही फ़ोन से शूट कर लिया। एंड उसके बाद मैंने बस ऐसे ही नॉर्मली उसको डाल दिया था। एंड देयर वाज अ पेज बॉलीवुड रैंकर जिसने इसको नोटिस कर लिया। एंड देयर वाज अ न्यूज़ चैनल सोशल न्यूज़ XYZ करके, एशियन न्यूज़, तो उन्होंने भी इस चीज़ को नोटिस कर लिया। एंड उन्होंने बोला कि फीचर किया इसको एशिया में, एंड काफ़ी व्यूज़ आने शुरू हो गए। पहले एपिसोड में 300 व्यूज़ थे, सेकेंड एपिसोड पे 10,000 व्यूज़ हुए, देन फर्स्ट वाले पे भी बढ़ गए ग्रेजुअली। एंड देन एट द एंड ऑफ द अश्वत्थामा 3 महीने के, मतलब क्योंकि मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया था, तो मैं हर एपिसोड एक हफ्ते के बाद डालता था, एक डेढ़ हफ्ते के बाद। तो मैंने देखा लोग आते गए, एंड मेरे फॉलोअर्स जो थे वो 100 या 150 थे बिफोर द सीरीज। फिर वो एकदम से राइज हुआ, वो 5-6 हज़ार पहुंच गए। उसके बाद अभी ग्रेजुअली कम होते हैं, लोग अनफॉलो कर देते हैं, दैट इज देयर ट्रेड। बट उस टाइम पे आई गॉट दैट कि हाँ, ऑडियंस को मेरी चीज़ पसंद आ रही है। मेरा अश्वत्थामा पहला सीरीज ने ऑलमोस्ट 1.5 लाख स्ट्रीम्स कर लिए। अच्छा, वो भी यूनिक था क्योंकि IGTV का सबसे पहला वेब सीरीज मैंने ही निकाला। दैट्स वाई एशियन न्यूज़ ने उस चीज़ को नोटिस किया था। उसके बाद मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैंने फिर से एक IGTV सीरीज निकाली, निशब्द, जो नोटिस हुआ इस बार इंडियन न्यूज़ चैनल से। और काफ़ी सारी ऑडियंस को पसंद आया क्योंकि उस टाइम पे सुशांत सिंह राजपूत वाला इंसिडेंट हुआ था, तो लोग काफ़ी प्रभावित थे दूसरे लोगों को देख के। तो मैंने ये भी स्क्रिप्ट काफ़ी पहले लिखी थी, और उस टाइम मेरे को सिचुएशन लगा कि लोगों को समझना चाहिए कि मेंटल हैप्पीनेस ज़रूरी है। तो मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई और उसको मैंने लॉकडाउन में अलग अलग लोग अलग अलग घर पे थे, मैंने उनको बोला आप फ़ोन से शूट करो, हम इसको ऐसा दिखाएंगे कि ये पूरी की पूरी जो सीरीज़ है दैट इज़ शॉट ऑन अ वीडियो कॉल। और फिर मैंने उसको एग्जीक्यूट किया एंड दैट केम आउट वेरी वेल। अभी भी गोवा फिल्म फेस्टिवल में इट हैज़ गॉट नॉमिनेटेड, और अभी मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी वो जा रहा है। नॉट फॉर द स्टोरी तो अच्छा है, बट दे लाइक द एग्जीक्यूशन कि हाँ, कोविड के टाइम पे लिमिटेशंस में दे शॉट दिस सीरीज विद अ ब्यूटीफुल मैसेज। तो वो था। उसके बाद फिर मैंने सल्तनत की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की, एंड देन 1.5 साल तक मेरी ऑडियंस ने वेट किया इस सीरीज का। रोज मुझे मैसेज आते हैं लोगों के कि मेरे बहुत सारे फैंस हैं जो मेरे को मैसेज करते हैं कि अरे यार, आपकी सीरीज आ भी रही है कि नहीं। जब तक रिलीज डेट नहीं आई थी तो उन्होंने मेरे को बोला यार नहीं, आपकी सीरीज नहीं आएगी, रहने दो। मैंने झूठा उम्मीद मत दिया करो। गुस्सा हो गए थे लोग, बट फिर जब आई तो काफी खुश हो गए। कल टीजर आया, उसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला ऑडियंस से। तो आई गेस आई थिंक मेक्स मोर सेंस, क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा देख के। मैंने हालांकि आपका दूसरा काम देखा नहीं है, बट नोइंग कि इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय सम रियली रेप्यूटेड people in the industry, that says a lot. And since आपके fans पूछ रहे हैं, I mean, what more can you want? Then people actually waiting for your next project. काफी वेट भी हो गया उनका। तो I think it's best that it's here, और इसीलिए हम लोग आपसे बात भी कर रहे हैं आज। So I think wrapping it all up, आपको अगर अपनी ऑडियंस को, सेंस ऑफ ऑडियंस के बारे में बात भी कर रहे हैं, अगर अपनी ऑडियंस को कुछ बोलना है, why they should see this series, apart for the fact कि उन्होंने आपको देखा है and they support you, but older and newer audience, what would you want to say finally? My audience knows कि I have created content which has always been different from the people. That's why maybe it is a reason why I have not grown very well like other people. मेरे साथ के बहुत सारे लोग हैं who have grown very big, and उनके काफ़ी सारे followers हो गए हैं, and people brand endorsement and everything they're doing, but I never do such things. मेरे लिए वो important नहीं है। मेरे लिए important है कि मैं जो भी content डाल रहा हूँ, भले मैं 6 महीने में एक content डालूंगा, but that has to be different, hit होना चाहिए audience को। एंड दैट इज़ वाई मैंने 1.5 साल का एक ब्रेक लिया एंड आई क्रिएटेड सल्तनत, एंड फाइनली इट्स आउट। तो मैं अपने ऑडियंस को यही बोलूँगा कि इस बार भी मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, एंड आई नीड देयर सपोर्ट टू द ऑफ द ओल्डर ऑडियंस एंड द न्यूअर ऑडियंस। आई नीड देयर सपोर्ट कि मैं कुछ अलग ट्राई कर रहा हूँ विद अ न्यू पीपल, न्यू कास्ट, एंड इस इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऑडियंस, देयर you've heard it. I think it is, like I said, we started off with saying that it is one of a kind. And throughout the conversation हम लोगों ने सुना आपकी स्ट्रगल के बारे में, not just your personal struggle but also shooting and casting and COVID restrictions, precautions, so many things, right? And all in all, it has come out super well. Yeah. And releasing 4th
4th September. 4th September, MX Player. MX Player, Hangama Play, Airtel Extreme, Vodafone TV, and Prime International. All right, superb, superb. And And also before wrapping it up, yes, we forgot one thing, and I would just mention him, and that is Mr. Shishir Shetty. He has done the narration of the series, and I don't think without his voice it would have been possible to create an impact on the audience. Whoever, like whatever dialogues you will hear is from his voice, and I think he has done an excellent job in the series. right. So I would want that people support him as well. Absolutely. And not just this, season 2 and 3 also. Season 2 and season 3 is also on the Yes. cards. So start with 1 and 2 or 3 aate rahega. So you have already Exactly. promised audience Exactly. doesn't have to wait a lot. Yeah, they don't have to hoping. wait a lot. Yes. Maybe in another year or maybe 6 months. Year or 6 Depends on months. the audience affection towards the series. Absolutely. So we should see you back again on this Yeah. chair. We'll see. Yes, We'll talk another interview about the second season. for sure. And the success of the first season. Yeah, and the success of the first season. All right, awesome. Thank you so much, Rehan. It was such a pleasure talking to you, and cannot wait for Sultanate to finally release and the audience to give you a lot of love. Thank you, All the Sonali. best. Thank you.